Dr. B.R. Ambedkar once said, "The Constitution is only as good as the people who work it." With this thought, welcome everyone as we begin our constitutional law series, Samvad on Samvidhan. In this series, we will look at the Constitution not just as a law book, but as a guide that shapes our everyday lives. This series is guided by Advocate Govind Bali, who will be sharing his insights and experiences with us across all the episodes. Advocate Bali is a practicing advocate based in New Delhi and the managing partner at Fast Track Legal Solutions LLP. His work spans civil, criminal, corporate, and regulatory litigation, with a strong focus on real estate law, RERA disputes, and commercial litigation. Over the years, Sir has represented clients before high courts, the National Company Law Tribunal, RERA authorities across India, and the Armed Force Tribunal. Sir is also the founder of Let's Startup.in, where he advises startups and entrepreneurs on compliance, regulatory approvals, and dispute resolutions. Throughout this series, he will help us understand constitutional principles not just in theory, but through real legal experiences and real world examples. As someone rightly said, to understand where we are going, we must first understand where we came from. And that is why, in our very first episode, we go back to the beginning. We will talk about the making and the history of the Indian Constitution, the ideas, the debates, and the struggles behind it, and why this document still matters even today. ये एक लेक्चर नहीं बल्कि एक कॉन्वर्जेशन है संविधान के साथ और संविधान के लिए. So, with open minds and curious questions, let us begin Samvad on Samvidhan. Welcome, sir, to the Constitutional Law series. Thank you so much. So, it is truly a pleasure to have you with us. And thank you for taking out the time to join us and to give your insights, to give insights about your experiences and making us understand the Constitution of India in a simple way. Yes, Vamakshi. So basically, Constitution of India is not a document. Like I put it is Samvidhan Ishq hai. It is the love of people who wanted India to be free from the white Angrez and did not want to give it to the Kala Angrez, like the former and the main individuals who wrote the document wanted to do. Many say that Indian Constitution is a copied document, but Yes. it is not. The Indian Constitution is a well researched document by well researched individuals, and the Constituent Assembly and the Constituent Drafting Committee was very well educated before it began. Yes, sir. True words, sir. Sir, the topic for today will be like we're going to focus on the very introductory part of the Constitution. So it could be easy for going along with the other parts. So the first thing today we are going to talk about in this series is the introduction part of the Constitution. What is exactly the Constitution of India? As I said, it is ishq, or it could be anything else for something for someone else. So the main focus is understanding the Constitution, how it came into being, and what were the processes that it took to get into a the particular document, like as we see how it came into being. So in this episode, we'll look closely on these topics. So finally, let us begin with the introduction, sir. To begin this journey, I would like to ask a very basic, yet it could be a very important question. So, why should an ordinary citizen like us, not who is not a law student, who is not a judge, or who is not at all related to law, why he should be caring about the Constitution? What exactly it is? Mhm. Basically, the Indian Constitution is something very different from other laws. Like I said, हिंदुस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इश्क है. So basically, he was speaking because of the Indian Constitution.
You are moving freely because of the Indian constitution. You can adopt any religion in this country because of the Indian constitution. You can do any job in this country because of the Indian constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है जो एक देश को देश बनाती है, जो इंडिया को इंडिया बना रही है, और इंडिया को एक डेमोक्रेसी के अलावा एक लिविंग लेजेंड बनाने की क्षमता रखती है. Yes, sir. Before we had a constitution in India, we were governed by rules and regulations which were given to us by people who were not our own people. They had come from some faraway countries, they had invaded us, they did not understand the culture of India, they did not understand how India works. They had मैं आज भी कई बार हैरान होता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवन दो इट हैज गॉट अमेंडमेंट्स, बट जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनकी सोच कितनी बड़ी थी कि उन्होंने आज भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी कैप्चर किया. Yes, sir. राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क, राइट टू अपॉर्चुनिटी, अगेंस्ट राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट ऑफ इक्वालिटी. उसके बाद उन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स नहीं दिए, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी कि भैया तुम्हें राइट्स दे रहे हैं पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आ रही हैं. जी सर. आई एम अमेज्ड बाय द आइडिया ऑफ इट कि लोगों ने कितना दिमाग लगाया होगा, कितना पढ़ा होगा कि उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया. नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना जरूरी क्यों है. जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल अदर लॉज इन इंडिया. Yes, sir. आई मीन यू से तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हुई है, बट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंदर भी कुछ उसका स्टेम रूट्स जो है दे कम फ्रॉम द मदर of all laws. That is the constitution of any country. And the best part is we've got a codified constitution. Matlab, we have got things in written which have been interpreted again and again. It is not like some other countries जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो है पर वो रोज लिखा जाता है और वो लॉज तब लिखे जाते हैं जब कोई नई जजमेंट पास हो जाती है. इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है, उसकी इंटरप्रिटेशन चेंज होती है. Yes, sir. एंड हर लॉ स्टूडेंट, तो क्या, आई पर्सनली फील देयर शुड बी अ सब्जेक्ट कॉल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन प्राइमरी स्कूल्स आल्सो, अदर देन द प्रियम्बल. आई मीन एनसीईआरटी की ज्यादातर बुक्स के अंदर फर्स्ट पेज हैज गॉट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. Yes, sir. उसके पीछे एक रीजन है. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी सरकार से बड़ा है, किसी भी इंसान से बड़ा है. और जो बेस्ट बात है इस कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको बदला नहीं जा सकता है. इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई भी सरकार आके बदल नहीं सकती. तो Yes, sir. बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है वो रहेगा. सो एवरीबडी नीड्स टू नो अबाउट इट. Yes, sir. लाइक जैसा आपने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी जिसे क्रिटिसाइज ऐसे करते हैं लोग लाइक इट इज अ बोरोइंग अ बैग ऑफ बोरोइंग पीपल से. सो एक क्वेश्चन ऐसे भी अराइज होता है सर दैट कि इंडिया के पास तो इतना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बट लाइक देयर आर कंट्रीज लाइक यूएस, वो 50 स्टेट्स का पूरा एक ग्रुप है, but still they have only 7 articles to govern them. So how and what was the mentality of those people who are making the constitution जब उनको लगा कि इतना ज्यादा expanded constitution हो सकता है हमारा to govern Indian people, और जब in contrast जब other countries थी जो सिर्फ कुछ आर्टिकल्स पे रह गई और अभी भी कंट्रोल कर रही है कंट्रीज को. बेसिकली वमाक्षी, जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है, व्हाई डिड वी इवन नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. जो फोर फादर्स थे हमारे, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे बी आर अम्बेडकर हो, चाहे अशफाकुल्ला खान हो, है ना, चाहे बिस्मिल हो, चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, आज की डेट में हमें ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने जो देखा वो हमने नहीं देखा. दे अंडरस्टूड दैट इंडिया एज अ कंट्री हैज गॉट मेनी प्रॉब्लम्स. Yes, sir. इट इज अ ओल्ड सेइंग दैट हिंदुस्तान एक ख्वाब है. तो वो जो ख्वाब है ना उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमें ख्वाब देखने की आजादी तो थी ही नहीं 200 साल तक.
बिल्कुल सर। Before 1947, for almost 200 years, Indians lived under the laws made without representation, enforced without accountability, and interpreted without equality. हमें पूछा ही नहीं गया कि भाई तुम्हारे ऊपर ये कानून लगा रहे हैं तो तुम्हें क्या चाहिए। हमें बोला गया ये तुम्हारा कानून है भैया, तुम्हें कल से इतना टैक्स देना है। सो कॉलोनियल लॉ जो था ना, या रूल्स जो थे, वो हमें इंडियंस को एक बहुत हार्ड लेसन सिखा के गए। वो हार्ड लेसन ये था कि पावर विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट्स ऑलवेज डीजेनरेट्स इनटू टायरनी। जब कोई रिस्ट्रेंट नहीं है तुम्हारे पावर के ऊपर, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुम पाकिस्तान हो जाओगे। बिल्कुल सर। Basically, their military has got so much power, they can put any politician into jail. They can tomorrow come up and say, ki, no, this will not happen, and it will not happen because the constitution is not strong enough. सेपरेट तो हमारे से ही हुआ है ना, उन्हें भी हमारे जैसे लोगों जिन लोगों ने हमें रूल करा, उनको भी उन्होंने ही रूल करा। उनको रूल करने कोई और लोग नहीं आए थे, वो हिंदुस्तान का हिस्सा थे। जी सर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट देयर फॉर is not only drafted merely to govern India, but to restrain those who govern India. जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेड करी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर, अगर मैं उनकी डिग्रियां गिनने लगूं ना, तो मुझे लगता है वी वुड नीड अ प्रॉपर वीडियो सेशन ऑन दैट ओनली। ही वाज दैट एजुकेटेड। यस सर। So he said a thing: the purpose of constitution is not merely to create organs of the state, but to limit their authority. जो डिवीजन ऑफ पावर है वो उनके माइंड में था। उनको पता था एक दिन ऐसा आएगा जब लेजिस्लेचर बोलेगा मैं जुडिशरी से भी स्ट्रांग हूँ, एग्जीक्यूटर से भी स्ट्रांग हूँ। आज के देश के अंदर लेजिस्लेशन जो बनाते हैं वो अलग लोग हैं, लेकिन उस लेजिस्लेशन को कैरी फॉरवर्ड एग्जीक्यूटर करता है, एग्जीक्यूशन कर रही है। और उन्हीं की पावर को रिस्ट्रेन करने के लिए उन्होंने उसके ऊपर एक जुडिशरी डाल दी है। सो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बिना हिंदुस्तान का चलना मुश्किल है। मुश्किल That इसलिए है क्योंकि जब तुम कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे, चाहे हम डीडी बासु से शुरू करके हम लोग कहीं पे भी जाए, उस पूरी स्टोरी लाइन को हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो धीरे धीरे फ्रेम होता रहा। सरकारें आई, सरकारें गई, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। कोई कहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में ये गलत है, तो भी एक स्ट्रक्चर है। तुम सिर्फ ये कह नहीं सकते कि ये गलत है तो ये अमेंड हो जाएगा। yes sir. For something like Article 370, which was amended, it still had the right to be scrutinized by the judicial system in this country, because the constitution was made in such a way that if something is amended, it can go to the court and be scrutinized. बिल्कुल। So basically, constitution एक बहुत अच्छी चीज भी है और एक बहुत रोमांटिक चीज है। लोग कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक किताब की तरह पढ़ रहे हैं। जब उसको एक फिलॉसफी की तरह पढ़ेंगे तो उनको रियलाइज होगा कि विदाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी वुड हैव बीन लेफ्ट विद नो राइट्स एट ऑल। व्हेन आई से दैट विद अ लॉट ऑफ अथॉरिटी। We would have lost everything we had just to the very cause that somebody in power did not want something to happen. यस सर। Even with emergency provisions coming in during one of the election periods of Indira Gandhi, it was the Indian constitution which mandated that emergency cannot go on for a very long period of time. It is the same Indian constitution and the legal system that exists in India that a sitting prime minister was called to the court, and she was cross-examined by then late Shri Shanti Bhushan Sahab, who was a lawyer of his own डोमेन। तो बेसिकली इंडिया के अंदर इक्वालिटी को बेस रखने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। सर जैसा आपने बोला कि इवन यू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन मतलब जैसे कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं एज अ लॉ स्टूडेंट, हम भी जब वी वर स्टार्टिंग आउट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमें हमने ये कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ये एग्जैक्टली exactly, तो कॉलेजेस में जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई नहीं जाते हैं, बट व्हेन वी
go for any other competitive exams, tab we find that they form a very important part of the whole subject or the whole curriculum. So sir, some insights about that. और जितना जितना आपने बोला कि even you have the constitution, but अगर वो implement अच्छे से नहीं हो रहा है, if उसको implement करने में problem आ रही है, तो इतना ज्यादा वो हम पाकिस्तान की तरह बन जाएंगे like that. देखो ऐसा है, हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान नहीं बन सकता। उसके पीछे तो बहुत सिंपल रीजन है। वी आर मच मोर ऑर्गेनाइज्ड एज अ कंट्री, and the legal document that we have, it has got a very deep purpose in it. When I say it has got a very deep purpose in it is, वो एक सोशल डॉक्यूमेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सोशल डॉक्यूमेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं है। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरीबॉडी द राइट टू फाइट। देयर कुड बी चांसेस कि भाई तुम्हारी बात एक बार नहीं सुनी गई, पुलिस वाले ने तुम्हारी एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, पर in the end, the court gives you the right to file a case. अब कुछ लोग कहेंगे भाई law is only for the rich. I Yes am sir. a legal aid counsel. मेरी चाहे फीस लाखों में हो, ठीक है, बट उस टाइम पे when I am acting as a legal aid counsel, I fight for free. So right to legal aid भी तो एक right ही है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ही दे रहा है। Yes sir, बिल्कुल. उसके बाद राइट टू फेयर कंपटीशन जो है, वो कंपटीशन एक्ट इंडिया के अंदर आया, तो वो भी तो एक प्रॉपर राइट ही बन के आया ना। तो बेसिकली ये जो लोगों को डाउट है कि इंडिया पाकिस्तान बन जाएगा, उन लोगों की जिंदगी में गालिब साहब ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आज की डेट में। गालिब साहब की शायरी में ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं या भारत की बात करते हैं या इंडिया की बात करते हैं, इंडिया एज अ नेशन इज मच बिगर एंड मच मोर स्ट्रोंगर देन एनी अदर डेमोक्रेसी। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यूएस को कहते हैं, ठीक है, बट यूएस के अंदर भी तो प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल सर. यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सोशल डॉक्यूमेंट नहीं है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, it is first and foremost a social document. When I say it is a social document, it is a social document because it converts subjects into citizens. We are no more subjects of the queen or to of some Maharaja of Patiala or Maharaja of Baroda or Maharaja of any other place. Second is it replaces hierarchy with equality. The president of India and a housemaid or a rag picker in this country are equal. You Definitely. might say कि पैसे का बहुत फर्क है, पावर का बहुत फर्क है. That is okay, but they both have got the same rights. They can go to the court. They can buy the same vegetables. They can sit in the same resort. Yes sir. And the third is it replaces arbitrariness with rule of law. पहले क्या होता था, अगर आप किसी अंग्रेज सरकार के मुलाजिम के नीचे काम करते थे तो आपके लिए कानून बदल जाता था, ठीक है। आप अगर अंग्रेज थे जो हमारे ही देश में आके हमारे पे ही राज कर रहे थे, आपको ज्यादा राइट्स थे हमारे से। जी सर. The same English government which used to say that they are the most liberal legal state in the country did not give a chance to Bhagat Singh to fight his own case. It was a closed court hearing. Why? In today's date, even Kasab got 4 years. Yes sir. That is the Indian constitution. In the end, he was hanged till death. That is okay, but he got a fair chance, right? Yes sir, definitely. Anybody in this country is getting a fair chance. In India, nobody is guilty till the last court decides him as guilty. That is the beauty of Indian constitution. The beauty of Indian constitution is that a person who had no money and political background can become the prime minister in this country. He can fight elections. Whether he wins or not is a different case. We might say कि इंडिया के अंदर परिवारवाद बहुत है, ये है वो है, भाई that is a different topic altogether. The Indian constitution has given everybody the right to study. Primary education is a right. Now even after primary schools being there and people not going to schools because their parents do not want them to go to school, it is not a fault of the constitution. It is a fault of the people of India who are not letting the constitutional values thrive.
अब इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सिर्फ राइट्स की बात नहीं करता है। वो Yes, sir. सोशल जस्टिस की बात करता है, वो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, वो पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। ये कोई भी लॉ स्कूल ये बातें नहीं पढ़ा रहा है, बिकॉज ये बहुत फिलोसफिकल लगती हैं। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फिलोसफी है। इट इज समथिंग लाइक रीडिंग साहिर लुधियानवी's पोइट्री और फिराक गोरखपुरी। जब तुम उनको पढ़ोगे तभी तुम उनको समझोगे ना। बिल्कुल सर. मतलब तुम बिना पढ़े किसी को, उसकी फिलोसफी को नहीं समझ सकते। एंड द बेस्ट पार्ट इज द मोस्ट एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडिया from all stratas was there when this constitution was being made. Of all the people, a person who was said to be a minority in this country and was said to be socially backward, okay, was the main person who was heading the Constituent Assembly and the drafting committee. Yes, sir. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही तो पूरी कमेटी को लीड करा। बिल्कुल इंडिया सर. के अंदर अगर ये हुआ तो पाकिस्तान के अंदर तो नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर तो जो फादर ऑफ पाकिस्तान जिनको बोला जाता है, उनको तो गवर्नर जनरल बना के छोड़ दिया था। हम्म. Yes. तो जिन लोगों का भी ये डाउट है ना कि इंडिया पाकिस्तान बन जाएगा, वो कभी नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, भारत भारत है, एंड इंडिया विल ऑलवेज बी इंडिया। We have got a much more stronger framework. We have got much more educated youth, and we have got everybody responsible who's doing any decisions in this country. जो लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ इस बात पे, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इंडिया को एज अ सोसाइटी रीबिल्ड करने के लिए बनाया गया है। वी आर बीइंग रीबिल्डिंग। सती प्रथा चलती रही, पर कुछ समय बाद चली गई ना। Yes, sir. एक साल में तो नहीं गई, 10 साल में भी नहीं गई, 70 साल में भी नहीं गई, 100 150 साल तो सती प्रथा को खत्म होने को भी लगे। बिल्कुल बट इन सर. द एंड इट वाज ओवर, राइट? Yes, So sir. when the Constitution of India came into place, we are just 75 to 80 years old as a country. This Constitution is leading the country in a very positive way. सो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वीक डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट, एंड द Yes. बेस्ट पार्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबॉडी। अ टेररिस्ट इन इंडिया गेट्स द सेम राइट्स एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन। बिल्कुल सर. दैट्स ट्रू. सर, जैसा आपने बताया कि हाउ ब्यूटिफुली द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर थिंकिंग कि आज भी ये इतना एप्लीकेबल है. इट इज even that much alive today, even though it was drafted at so many decades ago. सर, इसी से एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि देयर वर क्रिटिसिज्म, लाइक वी रीड टुडे, लाइक this was the person Granville Austin. He said that the constitution is it is a bag of borrowing, and he said that it is only mainly it was headed by only one party, which was the Indian National Congress. Hmm. And many said that also the constitution is only a one religion body, or the constituent assembly was only a one religion body, mainly focusing on Hinduism. Okay. So what is your opinion on that criticism? Like, even now people are uh, you know they have the right to speak, so we can see that there are people who still criticize the long time of the constitution it has taken. So what are your opinions on those यार criticisms? देखो, ऐसा है, हिंदुस्तान के संविधान ने उनको ऑप्शन दिया है क्रिटिसाइज करने का। बिल्कुल. By criticizing the constitution, they are enforcing the constitution, they are living the Indian constitution. The right to criticize is with everybody and everybody. Second question is that only one party was there. That is wrong. Indian National Congress was the only party existing at that time. The other parties were, RSS was there. RSS did the Rashtriya Swayamsevak Sangh was already there, and their inputs were taken. The Muslim League was not there anymore. एंड कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ असेंबली में नहीं हुई है कि भाई असेंबली में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और छोड़ दिया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स are there on every topic. After being debated and voted on a topic, the constitution came into place. It is not that I wrote a letter, मैंने अपना एक फरमान लिखा और वो कल से कानून हो गया।
ये किसी मुंसिफ के लिखे हुए फरमान नहीं है जो गलती कर सकता है। इन फरमानों को या इन बातों को कानून के अंदर देखा गया, सुना गया, पढ़ा गया, डिबेट करा गया, इनके ऊपर बातें करी गई, बड़े बड़े लोग थे। हु सेड दैट ओनली हिंदूज वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? Those people have not read the constitution. If they're graduated from WhatsApp University, I cannot help it. If they want, the Indian Constituent Assembly debates are available on the internet for free, and you can get the translated documents also. Go read them. तुम्हें समझ आएगा कि हिंदुस्तान के संविधान को कैसे बनाया गया। बिल्कुल। और अगर सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही होती, या ये माना जाता कि भाई कांग्रेस ने सिर्फ अपना ही सोचा और सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचा, तो राइट टू एजुकेशन कैसे आ जाता? हम्म। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटियां बनी माइनॉरिटी एजुकेशन के, उनके अपने एक्ट कैसे आ जाते? सो बेसिकली anybody in power or anybody who wants to win elections can do whatever they want to do, and the best part is the Indian constitution allows it. It is the same constitution that we are following that allows that anybody can say anything. अगर ऐसा होता कि सिर्फ कांग्रेस की बात सुनी जाती तो फिर आज हमारे पास इतनी पॉलिटिकल पार्टीज कैसे होती? बिल्कुल सर। फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स जो है, टू टू बी द पर्सन बीइंग फाइटिंग द इलेक्शंस, ये भी तो हिंदुस्तान के संविधान ने ही राइट दिया ना, कि किसी और ने दे दिया? संविधान से। किसी को कुछ भी बोलने का राइट जो है उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि भैया तुम उतना बोल सकते हो जो किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे। इट इज द सेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट कि हम लोग को प्रिवेंट करा जाए। और मैं इस बात को इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो थिंकिंग थी ना हमारे फ्रेमर्स की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको शेप करा कॉलोनियल जो अब्यूज थी उसने। कॉलोनियल जो अब्यूज ऑफ लॉ था ना, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ट्रायल, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द कोर्ट्स, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन थ्रू लीगल इंस्ट्रूमेंट्स, ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी या कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उनका एक बहुत बड़ा सस्पिशन था कि अगर एग्जीक्यूटिव की पावर अनचेक्ड रहेगी तो ये सेम चीजें होंगी। तो उन्होंने उस सब चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, हिस्ट्री शोज दैट वेयर एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट, विक्ट्री इज ऑलवेज विद द इकोनॉमिक्स। मतलब दिस इज सेड इन 1947 यस सर। एंड इट इज ट्रू इवन टुडे। भैया जहां एथिक्स और इकोनॉमिक्स एक दूसरे के साथ कंफ्लिक्ट में है तो पैसा जीत जाएगा, और जीत भी रहा है। इन्होंने ये बात तब भी सोची थी, ठीक है? जुडिशियल रिव्यू की बात तब हो रही है 1947 के अंदर। 1947 के अंदर अगर कोई बंदा जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, तो उन्होंने कुछ तो सोचा होगा कि बिना सोचे समझे बना दिया सब कुछ। बिल्कुल तो सर। ऐसा नहीं है कि इट वाज अ वेरी डिस्क्रिमिनेटरी डॉक्यूमेंट। हर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ना कोई चीजें गलत हो सकती हैं, इसीलिए तो अमेंडमेंट्स होती है ना। बिल्कुल सर। अमेंडमेंट इसीलिए हो रही है क्योंकि वो राइट दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस राइट को जानता है, समझता है और मानता है। सो ऐसा नहीं कह सकते कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पार्टी ने बनाया। उस टाइम पे पार्टी एक पार में थी, बना दिया उसने। The the problem is everybody wants to say that Congress is wrong. That is fine, but all the parties that have originated were once part of the Congress. या। And I am a staunch believer that without an opposition, a strong opposition, the society fails. So एक opposition और एक रूलिंग पार्टी होना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान एक टू पार्टी सिस्टम नहीं बना सकते हम, क्योंकि अगर हम टू पार्टी सिस्टम में जाएंगे तो द वेरी वैल्यू ऑफ अ फ्री सिस्टम गोज अवे। बिल्कुल सर। वेदर इट इज द बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है दिक्कत? कॉन्स्टिट्यूशन तो कहती है तुम पार्टी बनाओ, लड़ो, कौन रोक रहा है? ठीक है, द सेम सिस्टम आल्सो गिव्स एन इलेक्शन कमीशन। सो इट इज नॉट दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड ओनली फॉर हिंदूज। अगर ऐसा होता तो सिर्फ हिंदू लॉज ही होते, फिर मुस्लिम लॉज क्यों आते, इक्वल राइट्स क्यों होते?
फिर इक्वालिटी की बात क्यों की जाती? फिर तो ये बोला जाता है हिंदूज आर सुपीरियर। Hmm. फिर ये क्यों बोला जाता है कि भैया ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय या जितने भी लोग हैं, कि वैश्य है, ये सब एक साथ ही बैठेंगे, बैठ के खाएंगे, तुम रोक नहीं सकते किसी को पानी लेने से। सो ऐसा नहीं है, इक्वालिटी की बात करी गई एंड इट वाज मेड विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। So, this brings us to the conclusion of day one of the series. Today, we did not just talk about dates and events, we understood the journey of how India gave itself a constitution. From struggles to debates, this episode reminded us that the constitution was not just casually written, it was carefully built. We sincerely thank Advocate Govind Bali for taking us back to the roots of our constitution and explaining its making in such a clear and engaging way.